myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session as a part of revision for your SA1 exam, and this is my session number 1 for the revision work. So in today's session we will revise chapter number 1, that is globes and maps, and chapter number 2, the northern mountains and the northern plains. But kids, before I start the revision, let us discuss the paper style which is given to you. Let me tell you what are you supposed to do in your paper according to the paper style. In your paper style, question number 1 is MCQ based, that is choose the correct options. So you will be given a blank. The answers are given in 4 options. Whichever is the correct answer, you have to tick them. They are 10 marks. You will get 10 marks for that. 10 MCQ पूछे गए हैं जिनमें 4 ऑप्शंस हर क्वेश्चन में होंगे. Each question carries 1 marks. So if you attempt all the questions correctly, you will get 10 marks. Question number 2 is true or false based. Now in that they have given you a statement. Below the statement they have given you 2 options. It is but obvious the options are true and false. अगर आपको लगता है कि आंसर ट्रू है तो ट्रू पर टिक करोगे, अगर फॉल्स लगता है देन टिक ऑन द फॉल्स ऑप्शन. अगेन दैट इज 8 मार्क्स. इट कैरीज 8 मार्क्स. सो 8 ट्रू और फॉल्स होंगे तो 1 mark each. You will get 8 marks if all the answers are correct. Then question number 3. Question number 3 में A and B 2 parts है. दोनों fill in the blanks है. Both are fill in the blanks. In question A, listen carefully. Main question 3 में A वाला जो है fill in the blanks. In that you will be given 4 fill in the blanks. Then you are given the answers in bracket A, B, C and D. Now फर्स्ट ब्लैंक जो भी होगी उसका आंसर A है, B है, C या D, वो आपको करेक्ट ऑप्शन जो है A, B, C, D, वो ऊपर जो आपको हेल्प बॉक्स दी है उसमें से देख के करेक्ट ऑप्शन टिक करना है. नेक्स्ट B वाला ब्लैंक है तो उसमें आप हिंट बॉक्स में देखिए या हेल्प बॉक्स में देखिए. लुक इनटू द हेल्प बॉक्स. व्हिचएवर इज द आंसर फॉर ब्लैंक B, you will mark that from looking into the help box. So this type of blanks are given in set of 4 in 2 groups. 2 ग्रुप दिए हैं, दोनों A fill in the blanks A and fill in the blanks B. A में भी 4 blank है, B में भी 4 blank है. So 1 mark each. So you will get 8 marks if all the fill in the blanks are correct. Next, match the following. Match the following are also given in set of 2. 2 match the followings दिए जाएंगे. फर्स्ट मैच द फॉलोइंग में 3 मैचेस करने हैं. सेकेंड मैच द फॉलोइंग में अगेन 3 मैचेस करने हैं. They have given one side A, B, C, D, other side 1, 2, 3, 4. Then नीचे जो है आपको 1 के साथ B, 2 के साथ C, 3 के साथ A, ऐसे ऑप्शंस दिए हैं. ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हैं. तो उन 4 में से कौन सा वाला एकदम करेक्ट बैठेगा जिसमें 1, 2 and 3 तीनों के तीनों राइट आंसर होने चाहिए. तीनों के तीनों अगर राइट आंसर होंगे और वही वाला ऑप्शन आपने टिक किया है तो ही आपको 3 मार्क्स मिलेंगे. कितने मिलेंगे? 3 मार्क्स. करेक्ट. नेक्स्ट सेकेंड वाला भी है मैच द फॉलोइंग, वो सेम टाइप है. अगेन इट इज ऑफ सेम टाइप. 3 towards a column A and 3 options towards a column B. Just see which is the correct one. After that उसके नीचे जो आंसर्स के ऑप्शंस आपको दिए हैं जिनमें आपको टिक करना है उनमें भी वैसे ही 1, 2 and 3 के अगर राइट आंसर्स वाले ही आपने ऑप्शन पर टिक किया है
then you will get 3 marks for that. So 3 plus 3, 6 mark. Altogether, match the following 6 mark. Then coming to one word answer. One word answer, they have asked you 4 questions. Each question carries 1 mark. So question is given. Again, they have given you 4 options for the answers. Whichever you feel is the correct answer, tick on that. Okay? If all the answers are correct, you will get 4 marks. Then the last main question is answer in one sentence. Again, here they have given you 4 options for the answers. Each answer carries 1 mark again. So first question, there are 4 options for the right answer. Whichever you feel is the right answer, tick on that. Second question, again 4 options. Whichever you feel is the right answer, tick on that. So in this way, if you attempt all the answer in one sentence correctly, you can score again 4 marks. If you put the total of full paper, you will get 40 marks. So your essay 1 exam, the total marks for the paper is 40 marks. So attempt all the questions correctly. I have explained how you have to attempt them. Okay. Now in today's revision session, as you all know, essay 1 exam you are included chapter number 1 to 6. 1 से लेके 6 तक means chapter 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These many chapters are included in your exam, essay 1 exam. So in today's session, I am conducting revision for chapter 1 and chapter 2. So today's worksheet PDF which I am sending you, on the basis of this paper style, I have prepared a paper related to chapter 1 and 2 only. So go through these chapters properly and just see how you have to attempt the paper and try to attempt the paper. I have also marked the right answers on the paper, but I want you to write the paper without ticking the right answer, and after that you attempt the paper yourself and then cross check the paper through the PDF which I am sending you. Okay? आपको मैं जो PDF भेज रही हूँ वो पेपर ही है, पेपर स्टाइल के मुताबिक मैंने ये पेपर निकाले हैं, वर्कशीट निकाली है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी आंसर्स टिक किए हुए हैं. बट आप क्या करोगे, आंसर्स टिक किए बगैर पूरे पेपर को एक बार देखकर कॉपी कर लोगे, फिर PDF क्लोज करके आप अपने आप उस पेपर को अटेम्प्ट करोगे, मतलब पेपर में आंसर्स अपने मुताबिक टिक करोगे. पूरा पेपर खत्म हो जाने के बाद आप PDF फिर से खोल के मैंने जो आंसर्स यहाँ पर टिक किए हैं वो करेक्ट आंसर्स है, तो आप अपने आंसर्स को उन आंसर्स के साथ मैच करके देखिए ताकि आपकी समझ में आ जाए कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है और कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द रिविजन सेशन विद चैप्टर नंबर 1, ग्लोब्स एंड मैप्स. नाउ ग्लोब्स एंड मैप्स. In this chapter, first thing we learned that the introduction to the globes and maps. Initially, as I told you, people believe that Earth is flat. Earth is flat and there are corners. But the Portuguese explorer, his name was Ferdinand Magellan. He travelled through the Earth. He went round the Earth, and after a few years, he came to the same point from where he had started. So then he discovered that Earth is actually round or spherical in shape. Earth is spherical in shape. Then when we take the photograph of a globe from the space means the sky. It is round and it looks blue in color. How does it look? Blue in color. Why is it so? Why does it look blue in color? Because water is water. Correct? Then, now coming to the globes.
ग्लोब्स में हमने क्या पढ़ा था? ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ राउंड इन शेप लाइक अ बॉल। ग्लोब मतलब स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ है। मॉडल किसे कहते हैं? मॉडल मीन्स अ कॉपी ऑफ समथिंग यूजुअली स्मॉलर देन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। किसी चीज की हम कॉपी बनाते हैं मगर जो ओरिजिनल चीज है उससे छोटा वाला है। मॉडल ऑफ हाउस अगर आप बनाते हो तो क्या हाउस जितना बड़ा है उतना बड़ा बनाओगे? नहीं, उससे छोटा ही बनाओगे ना। छोटे छोटे रूम्स है, छोटे छोटे आप फर्नीचर्स लगाते हो। सो दैट इज मॉडल ऑफ हाउस। मॉडल ऑफ अर्थ मीन्स इट इज अर्थ बट वी हैव नॉट मेड इट टू द ओरिजिनल साइज। ओरिजिनल साइज जितना बड़ा नहीं बनाते, छोटा वाला बनाते, जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए अर्थ को हम छोटा सा बनाते हैं और एग्जैक्टली जो अर्थ का अपीयरेंस है सेम टू सेम लगाते हैं, तो उसे हम कहेंगे ग्लोब। क्या कहेंगे? ग्लोब। इट शोज डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियंस, सीज एक्सेट्रा। ओके, तो ग्लोब के ऊपर हम अलग अलग कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, ओशियन, सी, ये सारी की सारी चीजें को लोकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, कहां पर वो लोकेटेड है ये देख सकते हैं। देन the rod on which the globe spin represents the earth axis. earth axis मतलब अर्थ जो है राउंड राउंड घूमते रहता है, स्पिन करता है, मगर स्पिन करने के लिए उसकी एक फिक्स्ड एक्सिस होती है, तो उसके आजू बाजू ही वो घूमते रहता है। उस फिक्स्ड एक्सिस को उस फिक्स्ड रॉड को या हम कहेंगे एक्सिस। क्या कहेंगे? एक्सिस। नाउ the globe has few drawbacks of globes. Drawbacks मतलब everywhere globe is not useful. Sometimes globe is of no use also. Why? Because first point, we cannot see all the places on a globe at the same time. Globe, since it is round, the face which is towards you, you can see only those places. But the places which are behind the globe, can you see them? No. ग्लोब में जो फेस आपकी तरफ है वहां की जो एरियाज है, वहां पर जो लैंड एरियाज या वाटर बॉडीज लोकेटेड है वो आपको दिख रहे हैं, मगर उसके पीछे की तरफ के पोर्शन आपको दिख रहे हैं? नो। सो दैट इज अ ड्रॉबैक। दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ ग्लोब। सेकेंड ड्रॉबैक, ऑल द प्लेसेस ऑन अर्थ कैन नॉट बी शोन ऑन द ग्लोब। ग्लोब में अर्थ के ऊपर जो हर एक छोटी से छोटी प्लेस है उसका लोकेशन करना पॉसिबल नहीं है, डिटेल में हम नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल रिक्वायर अ मच मोर प्लेस देन द साइज ऑफ द ग्लोब। एक छोटे से ग्लोब में सारी छोटी छोटी डिटेलिंग हम प्लेसेस की नहीं कर सकते। कॉन्टिनेंट्स है या कंट्रीज है या कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है वहां तक आप कर सकते हो, बट उन सिटीज में अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, वो सारा का सारा डिटेलिंग आप ग्लोब के ऊपर नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि ग्लोब में जो है वो स्पेसिफिक एरिया, एकदम छोटी सी एरिया दी जाती है, उसमें ही आपको सारा का सारा फिल करना होता है। देन द लार्जर द ग्लोब द मोर डिफिकल्ट इट इज टू बी कैरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ग्लोब जो है वो आप हर जगह लेकर अपने साथ जा नहीं सकते हो। इफ यू आर ट्रेवलिंग टू सम न्यू प्लेस, कैन यू कैरी अ ग्लोब विथ यू जस्ट टू फाइंड द डायरेक्शन? किसी नई जगह पर जाते हो तो अपने साथ ग्लोब को कैरी करके नहीं ले जा सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे उस जगह के बारे में कुछ पता नहीं है, तो कुछ नई जगह पर जा रहा हूं तो I will carry a globe with me. Is it possible? No. Now next, talking about the maps. Maps means a drawing of a place on a flat surface like a piece of paper. किसी भी प्लेस को और अर्थ या पार्ट ऑफ अर्थ को हम अगर फिक्स पकड़े और उसका जो ड्राइंग हम फ्लैट सरफेस के ऊपर बनाते हैं, पेपर के ऊपर या किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर, तो उसे हम मैप कहेंगे। क्या कहेंगे? मैप। मैप्स आर ऑफ 3 टाइप्स: फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। फिजिकल,
पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। फिजिकल मैप में क्या दिखाया जाता है? व्हाट डू यू सी इन फिजिकल मैप? फिजिकल मैप इट विल शो यू द लैंड फीचर्स, वहां के उस पर्टिकुलर एरिया के लैंड फीचर्स कैसे हैं। इज इट अ प्लेन, इज इट अ माउंटेन, इज इट अ वैली, इज इट अ रिवर, इज इट अ प्लेट्यू, ये सारे के सारे जो लैंड फीचर्स है ना वो फिजिकल मैप में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप विल शो यू द कंट्रीज, कैपिटल सिटीज एंड अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस। पॉलिटिकल मैप में पर्टिकुलर प्लेसेस को लोकेट कहां पर किया गया है वो आपको दिखाएंगे। द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, सिटी एक्सेट्रा। ओके, देन टॉकिंग अबाउट थीमेटिक मैप। These maps are prepared on the basis of some specific theme. For example, when I explained the chapter, I told you रेनफॉल के बारे में अगर आपको कोई मैप चाहिए तो अलग अलग मैप्स बनाते हैं। जहां ज्यादा रेनफॉल है वहां अलग पैटर्न से शेड किया गया है। Where there is lesser rainfall, different shade is used. Where there is extremely heavy rainfall, different shade. Then talking about the forest. फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है उनके लोकेशन के बारे में अगर मैप करना है तो उनका मैप अलग से बनेगा। सो दैट इज बेस्ड ऑन द थीम्स। दिस मैप इज बेस्ड ऑन थीम, सो इट इज कॉल्ड अ थीमेटिक मैप। देन मैप दैट शोज स्मॉल एरिया सच एज स्ट्रीट, हाउस और अ रूम इन डिटेल आर कॉल्ड प्लान्स। किसी स्मॉलर एरिया के बारे में, किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, किसी पर्टिकुलर स्ट्रीट के बारे में, किसी पर्टिकुलर एक घर के बारे में ही मैप बनाना है तो दैट इज कॉल्ड अ प्लान। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड अ प्लान। देन टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ मैप। लैंग्वेज ऑफ मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मैप टू बी अंडरस्टूड। किसी भी मैप को अगर समझना है तो उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लैंग्वेज में क्या क्या पॉइंट्स है? फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शंस। कोई भी मैप अगर इफ दे गिव यू एनी मैप, यू शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ मैप। इन डायरेक्शन यू कैन सी अ एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स अप एंड दे हैव रिटन एन। कोई भी मैप में अगर अप एरो दिया है और उसके ऊपर एन लिखा है, दैट मीन्स वो डायरेक्शन नॉर्थ है, वो डायरेक्शन नॉर्थ है। अगर एक बार आपको नॉर्थ पता चल गया तो उसके बाद बाकी के साउथ, नॉर्थ के ऑपोजिट में आएगा, ईस्ट, वेस्ट, ये सारे के सारे डायरेक्शंस आपको पता चल जाएंगे। इफ दे डोंट गिव यू डायरेक्शन देन हाउ विल यू लोकेट अ प्लेस? आप अगर किसी प्लेस पर हो एंड आई टेल यू कि आप ईस्ट में जाओगे तो आपको ये वाली शॉप मिलेगी, तो आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि ईस्ट वाला डायरेक्शन कौन सा है। If you don't know the directions, then you will be lost. Then talking about the scale. Scale means what? See, maps are actually of a smaller size than the places are away from each other actually. Actually, दो places एक दूसरे से कितने दूरी पर है उससे small size में ही maps बनाए जाते हैं, correct? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 200 किलोमीटर दूर अगर कोई प्लेस लोकेटेड है तो मैं मैप के ऊपर 200 किलोमीटर का डिस्टेंस तो नहीं दिखा सकती। तब मैं क्या करूंगी? आई विल शो द डिस्टेंस ऑफ ओनली 2 सेंटीमीटर एंड नीचे जो स्केल, एक नीचे एक बॉक्स देखते हैं उसमें स्केल लिखते हैं जिसमें मैं लिखूंगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। सो इट इज बट ऑब्वियस कि 1 सेंटीमीटर अगर मैप में है तो वो एक्चुअल में 100 किलोमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर अगर मैप में आपको दिखाई दे रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह 2 सेंटीमीटर का गैप है तो यू विल कम टू नो के ये एक्चुअल में 200 किलोमीटर है। दैट इज स्केल। नेक्स्ट, लेजेंड और की। लेजेंड और की का मतलब क्या है? किसी मैप में आपने देखा होगा दे हैव गिवन यू स्मॉल सिंबल्स और दे माइट यूज डिफरेंट कलर्स, सो दे गिव अ स्मॉल बॉक्स इन द कॉर्नर ऑफ अ मैप in which they give the specific meaning of these symbols or colors.
मैप के कॉर्नर में एक बॉक्स दिया जाता है जिनमें अलग अलग सिंबल्स या अलग अलग कलर्स के मीनिंग क्या है, उन कलर का मतलब क्या है, मैप में वो कलर का क्यों यूज किया गया है वो लिखा जाता है। इन योर टेक्स्ट बुक अगर क्रॉस है तो यू विल आइडेंटिफाई कि दैट इज अ हॉस्पिटल, जहां पर क्रॉस लगाया जाता है हॉस्पिटल होता है। फिर एक सर्कल के अंदर एरोप्लेन है तो वो वहां पर एयरपोर्ट है। तो ऐसे अलग अलग आपको सिंबल्स कलर्स में भी दिए जाते हैं। अलग अलग कलर्स का मतलब होता है, सी ब्लू कलर मीन्स वाटर बॉडीज, ब्राउन मीन्स हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, येलो मीन्स हॉट डेजर्ट, व्हाइट मीन्स कोल्ड डेजर्ट और स्नो कवर्ड एरियाज, ग्रीन मीन्स प्लेन्स और लोलैंड्स। ये अलग अलग कलर्स के भी बारे में होते हैं। तो आपको किसी भी मैप में व्हेन दे गिव यू अ बॉक्स इन द कॉर्नर which tell you what does those signs or those color mean, then that box is called a legend or a key. What is it called? It is called legend or a key. Then we also learned about the grid. Grid means horizontal and vertical lines. When they are drawn on the map, then it forms a square pattern. कौन सी पैटर्न बनती है? स्क्वायर पैटर्न बन जाती है, चेक्स पैटर्न। तो वो स्क्वायर पैटर्न जो है उसे हम ग्रिड कहेंगे। इट विल हेल्प यू टू लोकेट द प्लेस। हर एक लाइन जो वहां ग्रिड में होती है, वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एवरी लाइन हैज गिवन अ स्पेसिफिक नंबर और उसका एक स्पेसिफिक नोटिफिकेशन होता है। तो उन नंबर्स को देखकर आप किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हो। दैट इज व्हाई द ग्रिड इज इम्पोर्टेंट। देन we also learn the advantages of map. What are the advantages of map? First thing, they are small and handy. As I told you, globes are very big, so very difficult to be carried from one place to another. But maps are very handy. Handy means you can, as they are on a piece of paper or a flat surface, you can fold them, keep it in your pocket or in your bag, and you can carry them anywhere. Then they can be folded and carried easily to different places. Then map shows smaller area in great detail, while globe only shows what the earth actually look like. मैप्स जो है उसमें आप किसी भी स्मॉल एरिया को बहुत सारे डिटेल्स के साथ बना सकते हो, क्योंकि ग्लोब जो है वो पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, मगर मैप जो है वो आप किसी स्पेसिफिक यू कैन से कॉन्टिनेंट के लिए मैप बना लो, किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए बना लो, किसी स्पेसिफिक सिटी के लिए मैप बना लो। तो मैप तो अलग अलग बन सकते हैं। एशिया का मैप बन सकता है जिसमें सिर्फ एशिया के पार्ट्स आएंगे। फिर सिर्फ इंडिया का मैप बन सकता है जिसमें इंडिया के ही पार्ट्स आएंगे। फिर सिर्फ आपका सिटी जो है उस सिटी का मैप बना लो, तो उस सिटी के बारे में छोटे से छोटे डिटेल्स उस मैप में आ जाएंगे। सो ग्रेट डिटेलिंग्स इन स्मॉल एरियाज इज शोन इन मैप। So here we come to the end of the revision of chapter 1. Now talking about chapter 2, the northern mountains and the northern plains. हमारे इंडिया में जो अलग अलग फिजिकल फीचर्स है उनमें से एक फिजिकल फीचर्स है नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स। इनमें सबसे पहले हमने सीखा था इंट्रोडक्शन में कि ये नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है वो हिमालयन रीजन को बोला जाता है, जो इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में आता है, सबसे ऊपर वाले पार्ट में। ओके, देन इट फॉर्म्स हिमालयाज फॉर्म द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। हिमालयाज जो है वो इंडिया एंड चाइना, ये तो अलग अलग कंट्रीज के बीच में हिमालयाज आ जाता है और उसकी वजह से वो एक नेचुरल बाउंड्री बन जाता है। बाउंड्री मतलब कि वहां पर वो लैंड, वो स्पेसिफिक कंट्री का एंड आ जाता है। उससे आगे अगर हम जाएंगे तो वी विल एंटर अ न्यू प्लेस, वो अलग कंट्री हो जाएगा। देन इन हिमालयाज वी लर्न दैट देयर आर 3 डिफरेंट रेंजेस। हिमालयाज में 3 अलग अलग रेंज है। एक है हिमाद्री जिसको हम ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं, एक है हिमाचल जिसको हम मिडिल हिमालयाज कहते हैं, एक है शिवालिक रेंज जिसको हम लोअर हिमालयाज कहते हैं। Now, Himadri range जो है, its average height is about the 6,000 meters from the sea level.
सी लेवल से 6000 मीटर्स हाइट पर रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हिमाद्री के माउंटेन्स जो है वो स्नो से कवर्ड रहते हैं। देन हियर देर आर ह्यूज माउंटेन पासेस भी है, जैसे जोजिला पास जम्मू कश्मीर में है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देन ग्रेट माउंटेन पीक्स सच एज माउंट कांचनजुंगा एंड माउंट अन्नपूर्णा आर ऑल्सो लोकेटेड इन हिमाद्री। Then glaciers are found. Glaciers meaning huge masses of ice called glaciers. बड़े बड़े आइस के टुकड़े जो due to the heat of the sun sometimes they melt and then they flow and slowly and gradually these ice will melt and become a river. So great glaciers are formed. Then talking about the Himachal range. हिमाचल रेंज में बहुत सारे अच्छे अच्छे वैलीज आते हैं, जैसे कि कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा एंड हिल स्टेशंस। लाइक वैलीज मतलब टू माउंटेन के बीच में जो लो लैंड होती है वो वैलीज होती है। तो ये हमने कुल्लू है, कश्मीर है, कांगड़ा है, ये सारे के सारे जो है वो वैलीज है। देन हिल स्टेशन जो माउंटेन्स के हिल्स के ऊपर रहते हैं। माउंटेन एंड हिल में डिफरेंस क्या है? माउंटेन्स बहुत हाई होते हैं, हिल्स जो है वो माउंटेन से थोड़े कम हाइट पर होते हैं। तो यहाँ पर हिल स्टेशंस भी बहुत है, जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग। रोहतांग पास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पास इन हिमाचल प्रदेश। रोहतांग पास यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन पास है। कहाँ का? हिमाचल रेंज का। Then talking about Shivalik range. Shivalik range is the lowest range of Himalayas और यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। यहाँ का एक प्रैक्टिस है टेरेस फार्मिंग का। टेरेस फार्मिंग एज आई टोल्ड यू, माउंटेन्स को स्टेप्स करके कट किया जाता है, फिर उसमें फार्मिंग करते हैं, तो उसे हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। The region of south of the Shivalik range is called Tarai. शिवालिक रेंज के जैसे जैसे नीचे की तरफ साउथ की तरफ आओगे तो उस रीजन को तराई कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयास। हिमालयास का इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट थिंग, नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सो फॉरेन इन्वेजन्स को रोकेंगे। देन प्रिवेंट द कोल्ड बाइटिंग विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ एशिया टू एंटर इंडिया। तो नॉर्थ की तरफ से जो ठंडी हवा बैक कर आएगी वो उसे रोक देगा। देन इट विल स्टॉप द रेन बेरिंग विंड टू एस्केप फ्रॉम इंडिया। इंडिया में से पास होकर जो रेन बेरिंग बारिश वाले क्लाउड्स होते हैं, बारिश वाली विंड होती है, उन्हें इंडिया से बाहर नहीं जाने देता है और ठंडी विंड को अंदर नहीं आने देता है। तो इट विल ब्लॉक द वे ऑफ बोथ। रेन बेरिंग विंड will not escape from India and cold wind will not enter into India. Then the forests in Himalayas are very much valuable as they provide timber, medicine, resin, honey and many more things. Then it is a natural habitat for many animals like snow leopard, tiger, rhinoceros and wild yak. Then the melting snow from the Himalayas they bring water to many rivers. जो यहाँ पे हिमालयन रीजन के ग्लेशियर्स मेल्ट होके पानी बनता है, तो उन पानी से बहुत सारी रिवर्स भी स्टार्ट होती है, जैसे कि हमारे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी रिवर्स फ्लो होगी। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो उनका एक्सटेंड जो है एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। पंजाब से लेकर असम तक वो एक्सटेंड होती है नॉर्दर्न प्लेन्स। देन जो है कौन कौन से स्टेट्स कवर होते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ असम। देन here the rivers in the plains are perennial. यहाँ plains, northern plain की rivers जो है they are perennial. Perennial means throughout the year they are filled with water. Throughout the year they are filled with water. Why is it so?
because northern plains are located just after northern mountains, towards the south of northern mountains. नॉर्दर्न माउंटेन्स से नीचे साउथ में जैसे ही आओगे नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो जाएंगे. सो द रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन because the glaciers there they melt and they form water and these form the river. तो ये रिवर जैसे नीचे आती जाएगी तो पूरे साल स्नो मेल्ट होते होते उन रिवर्स में पानी कंटिन्यूअसली फ्लो होता ही रहेगा. So these rivers are called perennials. Perennials means which are filled with water throughout the year. Then we are having three basins. Basins means area watered by a river and its tributary is called basin. कोई भी एरिया जो रिवर वाटर से it is fed by river water and its tributaries. उन एरियाज में रिवर का वाटर फ्लो होके ये बहुत फर्टाइल एरिया बन जाता है. तो ऐसे तीन बेसिस हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में इंडिया के, द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द सतलेज बेसिन. तो ये तीन बेसिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. गंगा बेसिन जो है वो गंगा बेसिन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रिवर गंगा. गंगा इज द सेक्रेड रिवर फॉर हिंदूज. हिंदूज उस गंगा नदी की पूजा करते हैं, सो इट इज कॉल्ड सेक्रेड रिवर. द सोर्स ऑफ गंगा इज गंगोत्री ग्लेशियर. द गंगा फ्लोज वेरी स्विफ्टली डाउन द माउंटेन्स एंड एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार. तो माउंटेन रीजन से फ्लो होके प्लेन्स में वो हरिद्वार से एंटर होती है गंगा. As it flow downwards, it joins tributaries. The Yamuna is the most important tributary of Ganga and it joins it at Allahabad. गंगा का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना और गंगा एंड यमुना दोनों रिवर ज्वाइन कहाँ पर होती है? इट इज एट इलाहाबाद. तो यहाँ इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है और इस प्लेस को संगम भी कहा जाता है क्योंकि वहां दो रिवर का they come and join each other, so it is called Sangam. So once in 12 years यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है, तो it is very important. Then in the east lies the Ganga Delta. East के साइड में गंगा डेल्टा है, also known as Ganga Brahmaputra Delta, formed by the river Ganga and Brahmaputra. ये डेल्टा जो है वो ट्रायंगल शेप का होता है. बिफोर द रिवर जॉइंस द सी वो लैंड एरिया पर डेल्टा फॉर्म करता है, ट्रायंगल शेप का होता है ये डेल्टा. गंगा डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है एंड इट लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट में है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एंड देन इट एंटर्स बे ऑफ बंगाल और बाद में ये गंगा रिवर फ्लो होके बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है. देन ब्रह्मपुत्र बेसिन. द रिवर ब्रह्मपुत्र स्टार्ट्स इन तिब्बत. रिवर ब्रह्मपुत्र कहाँ स्टार्ट होती है? तिब्बत में. एंड ये जो है ये सारी की सारी रिवर्स जो है वो जहां जहां से फ्लो होती है उस एरिया को फर्टाइल करते जाती है. देन द नेक्स्ट बेसिन इज द सतलेज बेसिन. Sutlej basin, यहाँ पर the famous Bhakra Nangal Dam has been built on river Sutlej, which provide electricity and water for irrigation. Sutlej river के ऊपर एक बहुत important डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया है जिसको हम कहते हैं भाखरा नंगल डैम, जिससे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फॉर इरिगेशन प्रोवाइड किया जाता है. देन the Indira Gandhi Canal is built on Sutlej River, which provides water to the dry areas of Rajasthan. Indira Gandhi Canal constructed on river Sutlej. Through this canal, the water is supplied to the dry areas of Rajasthan. Okay. Then coming to the importance of northern plains. Why are they important? First thing, the soil of northern plains is very good for growing crops. So crops grow करने के लिए बहुत important है. Then many important cities like Patna, Kolkata, Varanasi, Delhi have grown on the banks of rivers. तो ये यहाँ से नॉर्दर्न प्लेन्स में जितनी भी रिवर्स आती है उनके बैंक्स पर बहुत सारे important cities जो है वो डेवलप हुए हैं. As the land here is fertile
for the network of road and railway. This helps in transportation of food produced here and to the other parts of the country. तो ये क्योंकि प्लेन्स है, नॉर्थन प्लेन्स है, तो लैंड एरिया विल सपोर्ट good network of roadways and railways, and since the roadways and railways are having a very good network, the transportation of goods or the food commodity which is grown here can be supplied to other parts of the country easily. So here we complete the revision of chapter number 2 as well. So in today's session I revised chapter 1 and 2. As I told you earlier, I am sending a PDF which is prepared on the basis of your essay 1 paper style, and I want you to solve this paper yourself. Hope to see you good next time. Bye.